Hello students, in this video we are going to learn about nested list. Nested list means list within a list. For example, suppose we are declaring a list A which is having another list. Let us say it is having element 1, 2, 3. It is one list. 4, 5, 6, it is another list, so on. So what we see, it is a list which is containing another list. So this is the 0th element of A and this is first element of A, and here this is another list which is having, this is the 0th element of this list, this is first element, this is second, again this is 0th, this is 1, this is second element of this list. If we want to access this element, then we can say that this is A of 1. First we have to write the index number of the outer list and 1. So this is A of 1 of 1. Likewise, if we want to access this element, then this element will be A of first this index 0 and then this index 2. In this way we can access the individual element of a list. Now some important thing to be remembered. List. For general way, let us consider element as A of ij. नेस्टेड लिस्ट में हमने एलिमेंट को ए ऑफ आई जे बोला. आई और जे, दीज आर द इंडेक्स, मीन्स दिस इज आई एंड दिस इज जे. सो इन दिस वे वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ लिस्ट. आई 0 1 2 3 बढ़ता रहेगा, जे भी 0 1 2 3 बढ़ता रहेगा. इसका मतलब क्या, जो हमारा आई है और जे दोनों लूप में चल रहे हैं. आई कब चेंज होगा, जब उसके सारे एलिमेंट प्रोसेस हो जाएंगे. तो इन दिस वे वी राइट द लूप. ओके, लेट अस सी हाउ वी रीड आवर नेस्टेड लिस्ट. We can represent this nested list in the form of row and column in the form of matrix. Let us say 1 2 3 4 5 6. This is first row, means 0 1 2. These are the index number of this, and 0 1, these are the index number of rows, means this is first row, this is another row. In this way you can represent a nested list in two-dimensional form. Suppose we want m number of rows and in that n number of columns. Then first what we are doing, we are reading the size of m and n, like m int input enter rows, n int
input, enter, columns. Now to define a nested list, you have to define two lists. One is the outer list, and inside it is another list. So this will continue n times and this will continue m times. हमें दो लिस्ट डिफाइन करनी है, एक आउटर लिस्ट और एक इनर लिस्ट. लेट अस से इनर लिस्ट इज बी एंड आउटर लिस्ट इज ए. क्योंकि जो अंदर एक लिस्ट है ये अपने आप में एक कंप्लीट लिस्ट है, तो सिंपल सा फंडा क्या है, वी हैव टू डिफाइन टू लिस्ट. वन इज आउटर लिस्ट, अनदर इज इनर लिस्ट. मैंने क्या बोला, हमें दो लिस्ट डिफाइन करनी है, एक आउटर लिस्ट, ये तो हमारी हो गई आउटर लिस्ट, और एक इनर लिस्ट. इनर लिस्ट किसके अंदर, इसके अंदर. तो एक लूप हम चलाएंगे इधर m तक और दूसरा लूप चलाएंगे हम n तक. जो इनर लिस्ट है वो किसके, आउटर लिस्ट के अंदर डिक्लेयर की जाएगी. तो हमने क्या किया, फॉर i इन रेंज m, इसके अंदर हमने एक दूसरी लिस्ट डिक्लेयर करी, बिकॉज नेस्टेड लिस्ट के अंदर दो लिस्ट हैं, एक आउटर लिस्ट एक इनर लिस्ट. तो आउटर लिस्ट लूप के बाहर, इनर लिस्ट लूप के अंदर. और फिर यहाँ पर हमने दूसरा लूप लगाया एलिमेंट लेने के लिए, फॉर j इन रेंज n. Now we are reading the element of this inner list. तो हमने यहाँ पे लिख लिया b dot append int input enter and एलिमेंट. हमने ये इनपुट क्लोज, int क्लोज, append क्लोज. Here 1 2 3 3 brackets are there, so we have closed 3 brackets, 1 2 3. So in this way we read one element in the inner list b. एक एक करके n नंबर तक एलिमेंट b में आते चले जाएंगे, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द b वी हैव टू अपेंड दिस b इनसाइड a. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ v मीन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लूप वी विल अपेंड b इनसाइड a. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस आउटर द लूप हमने यहाँ पे क्या लिखा, a डॉट append b. In this way we read a nested list. अब nested list रीड होने के बाद में हमें वो काम करना है जो हमें आगे इसमें प्रोसेस करना है. Let us implement some work with the help of an example. The question is this: read a nested list from user and divide even elements by 2 and multiply other elements by 3. Let us define a function. Def, let us say the name of the function is sum list, in which a nested list A, its number of rows m and number of columns n are passed as parameter. So what we have to do, we have to divide the element by 2 and multiply other elements by 3. तो एक सिंपल सा फंडा है, ये जो काम होगा ये काम बार बार होगा. जो काम बार बार होता है वो लूप में होता है. दो लूप लगेंगे, एक आउटर लूप एक इनर लूप. आउटर लूप
रो का होगा, इनर लूप कॉलम का होगा। जैसे ये हमारी नेस्टेड लिस्ट है, दो लूप लगेंगे, एक आउटर लूप जो रो का होगा, एक इनर लूप जो कॉलम का होगा। और ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, इन इंडिविजुअल एलिमेंट को, जैसे दिस इज 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 0 2, दिस इज 1 0 1 1 1 2, इन जनरल फॉर्म यू कैन से एलिमेंट इज ए ऑफ आई जे। तो हमें चेक करना है ए ऑफ आई जे इवन है कि ऑड है। इवन है तो इसे 2 से डिवाइड करना है, ऑड है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स वी हैव टू चेक वेदर ए ऑफ आई जे इज इवन और ऑड। इफ इट इज इवन इट इज डिवाइडेड बाई 2 एंड ऑड देन मल्टीप्लाइड बाई 3। और ये जो काम होगा बार बार होगा, बार बार का मतलब लूप में होगा। दो लूप लगेंगे, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। आउटर लूप रो का होगा, इनर लूप कॉलम का होगा। नाउ लेट अस इम्प्लीमेंट। फॉर आई इन रेंज एम, आउटर लूप रो का होगा, एम इज द नंबर ऑफ रोज। इनर लूप कॉलम का होगा, फॉर जे इन रेंज एन, इनर लूप कॉलम का होगा। एलिमेंट मीन्स ए ऑफ आई जे, तो वी हैव टू चेक वेदर ए ऑफ आई जे इज इवन और नॉट। सो हाउ वी विल चेक इट? चेक करने के लिए इफ लगाते हैं। इफ ए ऑफ आई जे मॉड 2 इज इक्वल टू 0, अगर ए ऑफ आई जे इवन है तो इसे 2 से डिवाइड करना है। तो ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे डिवाइड बाई 2, एल्स ए ऑफ आई जे इक्वल टू a of ij multiply by 3. Now after doing this we have to display the list in this indent after the outer loop. Here in this indent we will write print a. In this way we have displayed the nested list. यहाँ पर क्या होगा, लिस्ट जो होगी वो पूरी एक बार में डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप इसको लिस्ट को एलिमेंट बाय एलिमेंट डिस्प्ले करना चाहते हो तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम बाद में करते हैं। फिलहाल इसको हम कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। नाउ टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन वी हैव टू कॉल इट, आई एम डिफाइनिंग द कंप्लीट आंसर बट इन द प्रोग्राम इन द एग्जाम यू हैव टू राइट ओनली दिस मच पार्ट। मीन्स अगर फंक्शन लिखने के लिए बोलेगा तो हमें खाली इतना हिस्सा लिखना है, बट हेयर आई एम राइटिंग द मेन पार्ट ऑल्सो। इन मेन पार्ट व्हाट वी हैव डन, हम यूज़र से पहले रोज और कॉलम एंटर कराएंगे। INT इनपुट एंटर रोज, INT input enter columns, in this way we have entered rows and column. Now we have to declare two lists, एक outer list declare करनी है और एक inner list declare करनी है। inner list हमारी रो के अंदर होगी, इसीलिए पहले हम लूप रो का लगा रहे हैं। फॉर आई इन रेंज एम, और फिर इसके अंदर हमने एक दूसरी लिस्ट डिक्लेयर कर ली बी। अब क्या यहाँ पर हमने कॉलम का लूप लगाया फॉर जे इन रेंज एन, और पहले हमें बी लिस्ट क्रिएट करनी है और फिर बी लिस्ट क्रिएट करने के बाद फिर हम ए में अपेंड कर देंगे।
बी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमने बी डॉट अपेंड, एक एक करके यहाँ पे हम एलिमेंट एंटर करवा रहे हैं। INT इनपुट व्हाट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट हमने इनपुट कराया, इनपुट क्लोज, INT क्लोज, अपेंड क्लोज। नाउ आफ्टर दिस we have to append B in A, so A dot append B. So in this way our list is ready, which we have seen here. हमने यहाँ पर लिस्ट को इनपुट कराया था, तो वही काम हमने यहाँ पर भी किया है। We have input the list. Now we have to call this function SUMList to perform this work. So for here, after the input of this, I am calling the function SUMList, और यहाँ पर हमने ऊपर देखा 3 पैरामीटर पास हैं, लिस्ट पास है, रोज पास है, कॉलम पास है। इसीलिए इन 3 पैरामीटर में हमें 3 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे सेम ऑर्डर में। हमने लिस्ट पास करी, रोज पास करी और कॉलम पास करी। दिस इज द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन SUMList here. Now this is a complete answer to implement while execution. हमें फंक्शन लिखना है और फंक्शन लिखने के बाद में लिस्ट को इनपुट कराकर फंक्शन को कॉल करना है। एग्ज़ाम में अगर आता है राइट अ फंक्शन, तो आपको खाली ये इतना हिस्सा जो फंक्शन वाला है ये आपको लिखना है, मेन पार्ट नहीं लिखना है। मेन पार्ट तब लिखना है जब इसको कंप्लीट प्रोग्राम लिखने के लिए कहा जाए या एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जाए। तो ये फंक्शन वाला पोर्शन है। तो जब आप इसको कॉपी में करें तो 2-3 क्वेश्चन को तो आप पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद सिंपली राइट द फंक्शन। नाउ हियर वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ए, तो ये जो आउटपुट देगा ये आउटपुट लिस्ट के फॉर्म में देगा। मीन्स इफ यू राइट print A, so it will produce the output in this form only. मतलब ये आंसर नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में देगा। बट इफ यू वांट द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, आपको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में आउटपुट चाहिए, सपोज यू वांट आउटपुट इन दिस वे 1 2 3 फर्स्ट रो, 4 5 6 7 रो, 8 9 10 थर्ड रो, लाइक दैट। इफ यू वांट द आउटपुट इन दिस वे, मीन्स यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट लिस्ट की फॉर्म में होगा, एंड यहाँ पर जो आउटपुट है वो आउटपुट एलिमेंट की फॉर्म में है। तो इसको कैसे करेंगे? अगेन यू हैव टू डिस्प्ले इंडिविजुअल एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स ए ऑफ आई जी, और डिस्प्ले वाला काम बार बार होगा, मतलब लूप में होगा। 2 लूप लगेंगे, एक आउटर लूप एक इनर लूप। आउटर लूप रो का होगा, इनर लूप कॉलम का होगा। तो फिर आप ऐसे लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज एम, आउटर लूप रो का होगा। फॉर j in range n, इनर लूप कॉलम का होगा। हमें एलिमेंट प्रिंट करना है। प्रिंट एलिमेंट मीन्स a ऑफ आई जे, एलिमेंट मीन्स a ऑफ आई जे, लेकिन हमें एक रो मतलब एक कॉलम पूरे एक लाइन में प्रिंट करना है, इसलिए हम यहाँ पर एंड स्पेस लिख रहे हैं ताकि लाइन चेंज ना हो। And after the printing of the loop, we have to change the line. So after the completion of this, we are writing print statement. It will change the line. So in this way, all the element will be displayed in the form of element. Thank you.